Hello and welcome to the part 2 of chapter number 8, that is class and object in Java, right? In this part 2, we first study about the different access modifier. Yeah, we can also say visibility modifier. Now, what is this role of the access modifier? We already study in class, we can declare the different types of variable and method, right? That variable is accessible within which part of our program that is completely handled by the access modifier, right? So, access modifier is basically responsible to control visibility, right? In which part of our program our variable will be visible, and determine if the method or variable can be referenced in another class or not, right? दूसरे class के अंदर आप वो access कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, that controlled by this access modifier. We have the basically 4 access modifier available into the Java. The first one is the public, right? So public, that means anywhere from any program you can access it. Second is the protected. Protected basically can be accessible within the same class and its child class or subclass, right? That is basically if they have the inheritance relationship, right? Third one is the package level access modifier, that is called the default access modifier, right? Default access modifier can be accessed within a package only. Package you can consider as a folder, right, in normal term, right? So whatever program you have saved in the same folder can have access to default access modifier. And if you declare any variable without any access modifier, so in Java by default is access modifier for every variables and methods as well. Next is the private. Private can be accessible within the same program, right? Sorry, same class, not even a program. It can be accessible in a same class. Outside class it is not accessible at all. So modifier public, protected and private are specified before the type of the variable, right? ये तीन को आपको explicitly declare करना पड़ेगा. There is a no keyword like default, right? वो automatically जावा कोई भी वेरिएबल के लिए उसको एज अ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कंसिडर करेगा. विदाउट मॉडिफायर कौन सा होगा? पैकेज लेवल या डिफॉल्ट विल बी applied for all variable, right? So package is what? So package I already explained, it's basically a one folder. Inside that we can put many classes, many files for our program. So it basically used to organization, right? अब without folder सारा data एक ही जगह रखोगे तो difficult to access or manage, right? So that is the same. जावा के अंदर भी आपको प्रोग्राम को प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक्सेस करना है तो उसके लिए हम पैकेज यूज करते हैं. So let's understand in detail. First one is the public. So method or variable with public are accessible to all classes including those into the other package. Folder के बाहर, package के बाहर कोई class है उसके अंदर भी आप access कर पाओगे. For that we have to use the public keyword is that, right? This is the syntax. Public variable name, right? And public method name. Public member can be accessible from other source file and package, that means from anywhere. Main method is always declared as a public, right? So that we can access to the everyone. हम main method को हमेशा as a public declare करेंगे. Next we have is the protected. So this level used to access only subclasses, right? Subclass कब create करेंगे? जब inheritance हम करेंगे, right? जिसके अंदर parent की सारी property उसके child class में access होगी, that is called subclass. तो उसके अंदर वो आप access कर सकते हैं. Or you can share with the method which declare as a friend, right? इसके अंदर एक special keyword आता है friend. अगर friend method है तो उसके अंदर भी आप उसको access कर पाओगे, right? But again friend keyword will be support in some of the versions only. Thus the visibility is narrow than the previous two level, right? Obviously, तो private और default से उसकी visibility क्या होगी? Narrow होगी. The use of the protected will be become more relevant when you use the inheritance concept के लिए protected is the more suitable one. Next is the private. So it has the highest protection because वो सबसे right same class के अंदर ही access होता है. Private method are variable are accessible within a
same class only, right? It cannot be accessible from any class, including subclass में से भी आप उसको access नहीं कर पाओगे, right? Now it promote the data encapsulation, मतलब डेटा को वो क्या करेगा, हाइड करेगा, बिकॉज आउटसाइड क्लास आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइवेट वेरिएबल एंड मेथड विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास. It is used to protect data so that no one can directly manipulate that data. Best practice to make, generally हम प्रोग्राम के अंदर every variable should be private and all the methods should be public. This is the best one to declare. The private variable can be accessed indirectly through the method accessible from other class. मतलब प्राइवेट वेरिएबल को आपको दूसरे क्लास में से एक्सेस करना है तो वो क्लास में एक पब्लिक मेथड बनानी पड़ेगी, राइट? वो पब्लिक मेथड का यूज करके आप पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाओगे. नेक्स्ट इज द एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड, राइट? अभी जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि वेरिएबल प्राइवेट होगा, राइट? अगर आपको उसको आउटसाइड क्लास एक्सेस करना है तो क्या, तो उसके लिए हम स्पेशलाइज मेथड बनाते हैं जिसको एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड कहेंगे, राइट? सो दैट इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सेस व्हिच टाइप ऑफ वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लासेस. नाउ उसके अंदर एक्सेसर मेथड को गेटर मेथड करेंगे, राइट? गेटर मतलब क्या, उससे हम वैल्यू सिर्फ रीड कर पाएंगे, वी कैन नॉट एडिट दैट, राइट? एंड म्यूटेटेड मेथड को बेसिकली हम सेटर मेथड बोलेंगे. दैट मीन्स उससे हम वैल्यू सेट करेंगे, राइट? मतलब उसमें वैल्यू चेंज कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे. दैट इज नोन एज द सेटर मेथड. नेमिंग कन्वेंशन जनरली हम इस तरीके से रखेंगे कि अगर गेटर मेथड है तो गेट एंड वेरिएबल नेम, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू गेट करने के लिए ये मेथड हम यूज कर रहे हैं. और सेटर मेथड है तो अगेन सेट एंड जिस वेरिएबल के लिए ये आप मेथड डिक्लेयर कर रहे हो दैट वेरिएबल नेम, राइट? तो दिस आर द नेमिंग कन्वेंशन दैट वी आर यूजिंग. तो गेटर का यूज किसके लिए हम करेंगे, टू रीड दैट वैल्यू, एंड सेटर का यूज किसके लिए करेंगे, टू मॉडिफाई दैट वैल्यू, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये दो वेरिएबल है, राइट, दैट आई हैव डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट, अगर मैंने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया था तो दैट आर द बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, राइट? तो यहाँ पर जनरली इस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, हम उसका एक प्रॉपर नेमिंग दे देते हैं, लेंथ. तो मेथड शुड बी पब्लिक, राइट? पब्लिक void get length. This is the naming convention that we follow for the method name. और इसके अंदर हमें वैल्यू सिर्फ गेट करनी है, तो इन दैट वी जस्ट यूज रिटर्न लेंथ, मतलब वैल्यू हम जस्ट रिटर्न करेंगे. और यहाँ पर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, सो वी पुट द रिटर्न टाइप एज अ इंटीजर. नेक्स्ट हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक void set length. इसके अंदर आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, या आपको यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आती है वो वैल्यू भी सेट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है. इज इक्वल्स टू एड. तो इसमें हम क्या किया, वैल्यू हमने मॉडिफाइड की, सेट की, इसमें आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर पाओगे और इसमें हमने वैल्यू रिटर्न की, राइट? ये वेरिएबल डायरेक्टली में मेन मेथड में या कहीं और पर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड गेटर और एक्सेसर मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड सेटर और म्यूटेटर मेथड. Next, how can we pass the object as a parameter in a method, right? तो हमने यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर की है जिसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास की है. दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, दैट मीन्स वो प्रिमिटिव और बेसिक टाइप की आर्ग्यूमेंट है. सेम लाइक अ बेसिक टाइप, आप पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज हाउ कैन वी पास द ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, right? So we can pass it in a similar way to the primitive data types, right? So primitive data type और object type pass करने में difference क्या होता है, right? So this is an important one. Primitive type are passed by value. किस format में pass होगी, values, and object parameter are passed by reference, right? Now we have to understand what is the difference between pass by value and pass by reference, right? तो जब भी आप pass by value करते हैं तो क्या होता है, ये मेथड है, राइट? वो कॉल कहाँ से करेंगे हम, यहाँ मेन मेथड में से करेंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया, देन टी डॉट सेट लेंथ, और यहाँ पर मैं कुछ भी उसकी वैल्यू पास करूंगी. यहाँ पर हम एक वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू पास कर लेते हैं.
integer L equals to 12 and here we pass the L itself. ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वेरिएबल यहाँ पर है और एक वेरिएबल यहाँ पर है, राइट। अभी जब भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी मेमोरी एलोकेट हुई, तो मेन मेथड से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ प्रोग्राम का, तो यहाँ पर एल के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई, राइट। बाद में उस एल को हमने पास किया मेथड के अंदर, तो हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा। अभी इन दिस पॉइंट वो क्या करेगा, इस एल के लिए भी एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट और यहाँ पर जो 12 वैल्यू थी वो 12 वैल्यू जो न्यू मेमोरी एलोकेट की उसमें पास करेगा, राइट। दैट मीन्स अगर आप एट दिस पॉइंट यहाँ पर एल की वैल्यू में कोई भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट लाइक दिस एल इक्वल्स टू एल प्लस 10, तो वो चेंजेस राइट ये फंक्शन के लिए जो एल की मेमोरी एलोकेट की है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो गए, नॉट इनटू द ओरिजिनल वन, राइट मतलब ओरिजिनल की मेमोरी सेपरेट रहेगी और आर्ग्यूमेंट की मेमोरी सेपरेट रहेगी। आप जो भी चेंजेस करोगे वो आर्ग्यूमेंट वाली मेमोरी में होगा, ओरिजिनल वेरिएबल में कुछ वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी नहीं, राइट। दैट मींस बाय डिफॉल्ट एज अ कॉपी क्रिएट करके वो पास करेगा। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं, राइट मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले, इसके अंदर मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर लिया, डन। अभी यहाँ पर टेस्ट T1 और यहाँ पर T1 डॉट डिस्प्ले और यहाँ पर मैं T ऑब्जेक्ट पास कर देती हूँ। नाउ इन दैट केस क्या होगा, राइट तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर T मैंने डिक्लेयर किया है उसकी मेमोरी सेपरेट हो गई, राइट। अभी जब भी आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट पास करोगे तो एट दैट पॉइंट न्यू मेमोरी इज नॉट क्रिएटेड, राइट। इसके अंदर क्या होगा, ये जो T का एड्रेस होगा वो T का एड्रेस यहाँ पर पास होगा, राइट। दैट मीन्स अगर आप ये फंक्शन में से कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं T डॉट ए, इसके अंदर हमने एल लिया है, लेंथ है, सो T डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 12 या इज इक्वल्स टू 20, तो इन दैट केस क्या होगा, T के अंदर जो लेंथ वेरिएबल है, राइट उसकी भी वैल्यू 20 हो जाएगी, राइट और यहाँ पर जो वैल्यू हमने पास की है दैट विल बी आल्सो 20, दैट मींस उसके अंदर न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट ओनली वन मेमोरी इज देयर और उसी का एड्रेस यहाँ पर पास होगा, ओके। तो वैल्यू में क्या होता है, टू सेपरेट कॉपी आर क्रिएटेड और रेफरेंस में क्या होता है, एक ही कॉपी होगी, राइट और वही का एड्रेस पास होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप जो चेंज करोगे दैट चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन द T वैल्यू एज वेल, T की वैल्यू में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड रेफरेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, तो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू क्या होगा, कॉपी होगा टू द फॉर्मल पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट में जो पैरामीटर होता है उसको इन टेक्निकल टर्म हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। चेंजेस टू द फॉर्मल पैरामीटर, राइट फॉर्मल में आपने जो भी चेंजेस किया दैट डू नॉट अफेक्ट द actual parameter, right? So that is passed by value. In reference, the address of the actual parameter is copied into the formal. That means इसमें address pass हुआ है, new memory is not allocated at all. Changes made to the object inside method, right? Method के अंदर अगर आपने object की कोई भी value में change किया तो that affect the original object as well, right? So this is the difference between by value and by reference. Now let's understand what is inheritance is, right? You already know what is the main advantage of inheritance. So we are using inheritance to implement reusability, right? कि अगर आपके पास program के अंदर already existing class है, right? For example, person, it has some common attribute of the person like name, age, email and contact number. अगर आपको एक नया class बनाना है employee नाम का, now employee नाम के अंदर भी राइट सेम सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी, बिकॉज वी कैन से एम्प्लॉय इज अ पर्सन, राइट। तो फॉर दैट हम सारे एट्रीब्यूट जो ऑलरेडी पर्सन क्लास में डिक्लेयर किए हैं वो फिर से हम एम्प्लॉय में रीडिक्लेयर नहीं करेंगे, राइट, रादर देन वी आर इनहेरिटिंग दैट थिंग, फाइन। सो इट अलाउ क्रिएटिंग न्यू क्लास, हमने एम्प्लॉय हमने न्यू क्लास क्रिएट किया, राइट।
एडेड कैपेबिलिटी बाय द एग्जिस्टिंग क्लास, राइट, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास के सारे वेरिएबल्स और मेथड क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। इसके लिए जनरली हम क्या करेंगे, इज अ रिलेशनशिप, राइट। पेरेंट क्लास को सुपर क्लास बोलेंगे या बेस क्लास बोलेंगे, और जो न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं दैट इज रेफर्ड एज अ सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, और वी कैन से एक्सटेंडेड क्लास एज वेल, राइट। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जनरली हम किस में रखेंगे, सुपर क्लास में, पर्सन की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। उसके ऊपर से आप मल्टीपल चाइल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। आई कैन से लाइक स्टूडेंट इज ऑल्सो पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, राइट। तो वो स्टूडेंट और एम्प्लॉय में वी हैव सम कॉमन फंक्शनैलिटी जो हम पर्सन में लिख देंगे, बट जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम मेंशन करेंगे। सो सब क्लास विल इनहेरिट all the variables and method of the super class, और additionally उसके पास अपने खुद के भी कुछ पैरामीटर्स और कुछ फंक्शंस अवेलेबल होंगे। तो this is a symbol that we are using for the class diagram, right? तो क्लास डायग्राम में आपको इनहेरिटेंस दिखाना है, तो दिस इज वन पेरेंट क्लास रूम, राइट। रूम कोई भी टाइप का हो सकता है, उसमें से उन्होंने क्या किया, क्लासरूम, क्लासरूम इज अ रूम, राइट। तो उसको इनहेरिट करने के लिए जो सुपर क्लास होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरो के साइन करेंगे, राइट। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लासरूम का, राइट, R1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासरूम, तो उसके अंदर सॉरी दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द ओनली रूम, ओके, तो उसके अंदर क्या आएगा, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो आएंगे, राइट। और अगर आपने यहाँ पर सिर्फ रूम है, इट्स नॉट अ क्लासरूम, ओके, यहाँ पर क्लास कीवर्ड है और रूम इज अ क्लास नेम, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दिस क्लास, क्लासरूम का, तो इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के एट्रीब्यूट यहाँ पर आएंगे, राइट। तो पेरेंट क्लास के जो 4 एट्रीब्यूट थे, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो, as well as it has the 2 special attribute, that is number of benches and number of seats in a benches, right। तो वो दोनों attribute भी यहाँ inheritance होके आएंगे, right। तो this how we can implement the inheritance using class diagram as well। now अगर Java के अंदर आपको inheritance करना है तो उसके लिए we have to use the extends keyword, right। with the help of this keyword we can inherit the base class functionality into the child class, right। and सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो वेरिएबल एंड मेथड्स इनहेरिट होगी, कंस्ट्रक्टर विल नॉट इनहेरिटेड इनटू द चाइल्ड क्लास एट ऑल, राइट। अगर आपको कॉल करना है तो यू कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ द सुपर कीवर्ड, राइट। आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बट वो इनहेरिट नहीं होगा, राइट। और वो कॉल करने के लिए वी हैव टू यूज द सुपर कीवर्ड। तो इनहेरिटेंस का एक बेसिक एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। तो इन दिस वी हैव वन क्लास पर्सन, राइट। इसके अंदर हम सिंपल एक नेम, वी हैव ऑन सेट वन एट्रीब्यूट ओनली, दैट इज द नेम। एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, सेट नेम। Using this method, we can set the value of this variable. और एक डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, जिसके अंदर हम नेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास हो गया, राइट। अभी आपको क्या करना है, यू वांट टू क्रिएट one more class from this class, right। for example we can take example of employee। now every employee must have some salary obviously, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा फील्ड होगा, दैट इज अ सैलरी, जो हर एक पर्सन को पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ले लिया, बट मुझे उस एम्प्लॉय का नेम भी तो चाहिए ना, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम,
right? If you have list of variable, then we have to declare list of variable again, right? So for that, what we are doing, instead of declaring all variable again, we are just inheriting that thing with the help of the extend keyword, extends person. ओके तो इससे क्या होगा, सारे वेरिएबल्स और मेथड इनहेरिट होके एम्प्लॉय के अंदर आ जाएंगे, राइट? और इसके अंदर आपको जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सेट करना है, दैट ओनली यू कैन सेट ओवर हियर. सपोज हम स्टैटिक सैलरी 2000 रख लेते हैं एंड हियर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सैलरी करके एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं. तो दिस इज इनहेरिटेंस इज डन, राइट? ये मेरा बेस क्लास हो गया और दिस इज माय डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास हो गया. जनरली हम इनहेरिटेंस के अंदर जो भी आपका चाइल्ड क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. व्हाई? बिकॉज इट हैज द एक्सेस टू ऑल एट्रीब्यूट्स, राइट? पेरेंट क्लास एज वेल एज क्लास इटसेल्फ. तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्लास है, फ्रॉम दिस क्लास हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय. नाउ इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास एक मेथड है सेट नेम, राइट? सेट नेम हमने मेथड कौन से क्लास में डिक्लेयर की है? पर्सन नाम के क्लास में. एम्प्लॉय नाम के क्लास में कोई मेथड नहीं है, तो यहाँ पर हम उसका एक नेम सेट कर सकते हैं. So this is what I name set to this, right? Then I can display that and अब सैलरी भी डिस्प्ले कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क, राइट? तो यहाँ पर ये जो पेरेंट क्लास की दो मेथड थी, सेट नेम एंड डिस्प्ले, ये दोनों मेथड मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बिहाइंड द इनहेरिटेंस. अगर आपने इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया होगा पर्सन का, ओके, और you are passing parameter in this also n. तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन पेरेंट क्लास आई हैव मेंशन डिफॉल्ट एंड विथ आर्ग्यूमेंट दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पर मैंने सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है जिसके बेस के अंदर हमने सैलरी की है, राइट? तो मुझे यहाँ पर उसकी सैलरी कुछ सेट करनी है, लेट्स से 2000 या वी कैन सेट डिफरेंट वैल्यू 4000. यहाँ पर हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ओके, नॉट नीडेड. तो यहाँ पर अगर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेम आ गया प्रॉमिस एकेडमी और उसकी सैलरी आ गई 4000 रुपीज, राइट? नाउ इसके अंदर कहीं पर भी आई रीरन दिस, मैंने यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया, बट यू कैन सी दैट इज नो मैसेज डिस्प्लेड ओवर हियर,
राइट। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सिंपली डिस्प्ले का आउटपुट प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा नेम प्रिंट हो गया है, राइट, एंड उसके नीचे हमारी सैलरी प्रिंट हो गई है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल करना है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिकली कॉल होता ही है, राइट। यहाँ पर हम अगेन एक स्टेटमेंट डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं मैसेज पास करती हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली, बट आपको कौन सा करना है, दिस आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, राइट। तो वो आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, राइट। तो यहाँ पर आपको सुपर कीवर्ड और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, रैंडमली आई पास ABC, ओके। नाउ अगर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो कंस्ट्रक्ट प्रिंट हुआ, दैट मीन्स ये हमारा पैरामीटर वाला कॉल हो गया, राइट। तो जनरली पेरेंट क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने देखा था कि विदाउट कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट, बट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सुपर कीवर्ड का यूज हम किसके लिए करेंगे, उसको एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, राइट। एज वेल एज आप सुपर कीवर्ड का कॉल करके मेथड भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये करना है कि ये डिस्प्ले सैलरी है, इसमें से ये डिस्प्ले वाली मेथड कॉल हो जानी चाहिए, राइट। तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड एज वेल, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो दिस वे आप उसको भी कॉल कर सकते हैं, राइट। नाउ let's understand what is happen with the private member of the parent class or super class in inheritance. So instance variable with a default accessifier are directly accessible within the entire package. वो हमने देखा था, अगर वेरिएबल डिफॉल्ट है मतलब कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं डिक्लेयर किया है, लाइक हमने यहाँ पर नेम के आगे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो सारे पैकेज के अंदर एक्सेस होगा, राइट। बट अगर आप उसका विजिबिलिटी डिफॉल्ट से प्राइवेट करते हैं, राइट, तो इन दैट केस क्या होगा, इट इज कैन नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड आर नॉट विजिबल इन अ सब क्लास, सब क्लास में भी वो एक्सेस नहीं होगा, ओके। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, तो टू एक्सेस दैट वी हैव टू, हमने जैसे पहले स्टडी किया था, गेटर और सेटर मेथड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आइदर अगर आपको गेटर सेटर मेथड नहीं डिक्लेयर करनी है तो उसको नेम को मुझे यहाँ से एक्सेस करना है कि लाइक ये एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर जैसे मैंने यहाँ सैलरी प्रिंट की है, सेम वे मुझे नेम भी प्रिंट करना है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है उसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा सेट करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास में से डायरेक्टली एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं होगा, और वो एक्सेस करना है तो गेटर सेटर मेथड आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक इट प्रोटेक्टेड इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। नेक्स्ट कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, राइट, ये हमने पहले स्टडी किया था। जनरली इनहेरिटेंस हैव द ईजर रिलेशनशिप, बट कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन हैज अ रिलेशनशिप, राइट। इसके अंदर क्या होता है, वन क्लास फंक्शनलिटी इनहेरिट इनटू द सेकंड क्लास, बट कंपोजिशन और एग्रीगेशन में क्या होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी हैज अ रूम, लाइब्रेरी के अंदर रूम है, राइट। तो लाइब्रेरी इज अ वन क्लास, ओके, एंड रूम इज अ सेपरेट क्लास। और आपने क्या किया है, रूम क्लास का ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में यूज किया है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन और एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी हमारा क्लास है, तो उसके अंदर हमने नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ मैगजीन्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और रीडिंग रूम, ये जो रीडिंग रूम वेरिएबल है वो दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट आपके इस क्लास में यूज किया है, राइट। तो दैट इज अ सिनेरियो लाइक अगर हम एम्प्लॉय क्लास है मेरा, ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइक दिस, हमने इनहेरिटेंस नहीं किया है, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, राइट। तो दिस इज द हैजर रिलेशनशिप दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन अ जावा, राइट। तो लाइब्रेरी क्लास के अंदर रीडिंग रूम है, वो रूम क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, जिसका यूज करके
आप रूम क्लास की कोई भी मेथड है, डिस्प्ले मेथड है, राइट, और रीडिंग रूम कितने हैं वो सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले मेथड से उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. So that is how we can implement composition and aggregation into the Java, right? So I hope you understand all this concept clearly, right? Theoretically and practically both. Fine. So thank you.